Hello everyone, welcome to my YouTube channel. This is the recording for skills at the rate 100 where for 100 days we are bringing for you 100 different speakers from all over the country. The speaker is CA Kedar Gogate and the topic is data to decisions where we have learned about creating our own environment leveraging Excel, BI and Google tools. More of him in the link in the description of this video. Also, this video is sponsored by Soulful Success Academy by Komal Putra, who is a passionate life and mindset coach. She has trained over 500 plus professionals and individuals who help achieve their full potential. More of them in the link in the description. So now, what are we waiting for? Let's go. Good evening, everyone. First of all, thank you all the participants who have joined on a Saturday evening, and I welcome you all to the 15th session, live session of Skills at the Rate 100, where we are trying to bring the best speakers of the country for you and for me. Okay, I do it for you and me both. So today is a very, very special topic. The speaker is CA Kedarji, and he's an amazing person. I recently met him at Hyderabad in the FIP program, and that very day we had decided कि we मतलब मैं I have decided कि next speaker इनको ही बुलाना है मतलब he's to like half hour he has shown us something. It was so amazing, and all of the person sitting there we decided नहीं नहीं इनको मतलब छोड़ना नहीं है. He's an amazing speaker, I'll tell you in advance. And not only he's a chartered accountant, but he has also done MCA, like coding background, DISA, FAFD. He's like corporate trainer. So we also heard his story. It was amazing. Kedarji, we are very excited and happy that you have accepted our invitation in one go. My And pleasure, sir. My pleasure. over to you, Kedarji. Thank you so much Yeah. for accepting. I'll stop my screen. Over to you. Okay. Thanks, Lokesh bhai. Thanks for all the kind words for me. और मुझे हमेशा एक बहुत एक्साइटमेंट होती है जब कुछ जो चीज़ें मैं जानता हूँ वो कुछ लोगों के साथ शेयर कर सकूँ, फेलो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हो, स्टूडेंट्स हो. If I'm able to even make a difference and save 5 minutes of anybody's job by teaching them some kind of automations or some kind of skills that I have, तो मुझे लगता है कि that's a success for me. तो जैसे हमने हैदराबाद में बात की थी, तो आई एम हियर टू शेयर सम ऑफ माय इनसाइट्स रिगार्डिंग द इकोसिस्टम दैट. ओ सॉरी, म्यूट हो गया गलती से. सॉरी सॉरी. हाँ हाँ हाँ, बोलिए. ओके. सॉरी. सो आई एम केदार गुप्ते. आई एम अ प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट. As a passion and hobby, I keep learning stuff regarding be it Excel, Advanced Excel, Power BI, Power Automate, Google Studio, App Sheets, anything that excites me to learn about automation, data crunching, I keep learning. And I try to share some of the learnings that I have with my fellow friends, fellow students, and chartered accountants and professionals from other disciplines as well. तो आज हम बात करने वाले हैं building ecosystems so as to automate your daily tasks. So I hope my screen is visible. यस. Yeah. तो ये सेशन हम थोड़ा टू वे रखेंगे. लोकेश भाई, इज इट ओके दैट पीपल कैन आल्सो यस कंट्रीब्यूट यस, इन बिटवीन? वी या राइट राइट. तो 100%. तो हम हमेशा एक चीज देखते हैं कि हम जब काम करते हैं हमारा रोज, तो बहुत सारी चीजें ऐसी होती है जो रिपीटेडली हम करते रहते हैं. करेक्ट. उसमें क्या होता है, उसमें हमारा टाइम जाता है. हर बार ये नहीं होता कि अ, जो चीज हम कर रहे हैं वो बहुत वैल्यू एडिशन और वर्थ स्पेंडिंग टाइम है, बट हम वो चीज करते हैं क्योंकि दैट्स पार्ट ऑफ आवर जॉब. तो फिर एक चीज दिमाग में आती है कि क्या ऐसा कुछ हम कर सके कि जिसके कारण हम अपना ये जो टास्क है, अपना ये जो काम है, ये ऑटोमेट कर सके. सिस्टम हमारे लिए वो काम करे रोज और हमें उसका रिजल्ट डायरेक्टली मिले. तो ये चीज जो होती है ये बहुत लोगों के दिमाग में होती है. ऐसा नहीं है कि इसके बारे में लोग सोचते नहीं है. बट देन सबसे बड़ा एक प्रॉब्लम होता है जो मैं कहना चाहूंगा, जिसे मैं बोलता हूँ कि द पैरालिसिस ऑफ नोइंग. करेक्ट. तो वी हैव हर्ड इट ऑल. वी हैव हर्ड अबाउट एआई, ऑटोमेशन, डैशबोर्ड्स, एफिशिएंसी, एवरीथिंग. वी नो दैट इट इज पॉसिबल. वी कैन डू दैट. वी हैव लॉट्स ऑफ आइडियाज. वी डोंट लैक आइडियाज. बहुत सारे दिमाग में हमारा आइडिया आता रहता है, कुछ यूनिक चीजें आती रहती है. बट हम रुकते कहाँ हैं? तो हम रुकते हैं एग्जीक्यूशन पे.
एग्जीक्यूशन हो नहीं पाता, क्योंकि हमें ऐसे लगता है कि ये बहुत यार टेक्निकल चीज हो गई है कि इसमें कोडिंग करना पड़ेगा, बहुत सारे टूल्स यूज करने पड़ेंगे, हमें वो टूल्स तो आते नहीं है, कैसे करेंगे। बहुत सारे टूल्स होते हैं, हमें पता नहीं चलता कि आगे कैसे बढ़ना है। बट टुडे इज द एज ऑफ एआई, टुडे इज द एज ऑफ, एज यू नो, हम चैट जीपीटी भी यूज कर सकते हैं। बहुत सारी ऐसे टूल्स है जो हमें सेल्फ लर्निंग में मदद करते हैं, हमारी कर सकते हैं। तो आज का जो टॉपिक है, तो मैं कुछ सिखाने के लिए नहीं आया हूँ, बट जैसे मैंने टीजर में आपको कहा था, तो हम एक थॉट शेयर करने के लिए आया हूँ आपके साथ कि कैसे हम इकोसिस्टम बिल्ड कर सकते हैं। ये नेसेसरी नहीं है कि हमेशा पेड वर्जन ही हो। इसका मतलब ये नहीं है कि हम पायरेटेड वर्जन के बारे में बात कर रहा हूँ। मैं बात कर रहा हूँ फ्री टूल्स के बारे में। जैसे गूगल के बहुत सारे टूल्स फ्री होते हैं। जैसे आपके पास लाइसेंस्ड माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस है, तो एक्सेल के साथ में पावर बीआई, पावर क्वेरी आजकल फ्री आता है, डेस्कटॉप वर्जन। तो ऐसी सारी बहुत सारी चीजें यूज करके आप आपके ऑटोमेशन बना सकते हो। ये भी नेसेसरी नहीं होता कि आपको पहले से चीजें खरीदनी है। बहुत सारे लोग आजकल फ्री ट्रायल्स भी देते हैं, 30 दिन का, 45 दिन का। तो आप पहले वो यूज करके देख सकते हो। एक बार यूज करने के बाद ये हो सकता है कि आपको मालूम पड़े कि हाँ ये आता है, तो आप उसे यूज करना शुरू कर सकते हो। तो अब मैं आगे बढ़ूंगा एक्चुअल टॉपिक के बारे में। तो प्रोसेस कैसे होती है इकोसिस्टम की। तो इकोसिस्टम की प्रोसेस ये होती है कि आपको सबसे पहले जानना है कि आपको कौन सा काम ऑटोमेट करना है, उसमें कौन कौन से स्टेप्स है। यहाँ पे बहुत सारे लोग जो सीए एस्पायरेंट्स है, जो चार्टर्ड अकाउंटेंट बने हुए हैं ऑलरेडी या एस्पायरेंट्स है, उनको याद होगा हमें एसडीएलसी के बारे में थोड़ा बहुत सिखाया गया था, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल। सो ये उसी की तरह होता है। आपको सबसे पहले प्रॉब्लम डिफाइन करना है, अपना स्टेप्स डिसाइड करनी है। उसके बाद में टूल्स आइडेंटिफाई करने हैं उसके, कि कौन से टूल्स अवेलेबल है, ऑनलाइन ऑफलाइन डेस्कटॉप पे जो भी है। उसके बारे में हमें उसके बाद में सोचना है कि डिपेंडेंसीज कहाँ कहाँ पे है, कौन सा डेटा कहाँ पे डिपेंड रहेगा, राइट। उसके बाद में तो आता है चैट जीपीटी। अगर आपको कोई कहीं पे अड़चन है, कोई डिफिकल्टी है, तो आप जीपीटी को भी पूछ सकते हो। एआई बहुत सारे एजेंट्स पड़े हुए हैं मार्केट में, उनसे वार्तालाप करके आप वहां पे जान सकते हो कि कौन सी स्टेप कैसे करना है। बाद में आप सेव करते हो प्रोसेस, और आप यूटिलिटी करना, यूज करना चालू कर देते हो। यहाँ पे मैं थोड़ा फास्ट जाऊंगा क्योंकि हमें डेमो भी देखना है। तो यहाँ पे मैं थोड़ा आपको थॉट स्टार्टर दे रहा हूँ कि हम कहाँ हेड कर रहे हैं, हमें कहाँ जाना है। वो स्टेप बाय स्टेप जाएंगे। तो इशू, तो अब हम आज एक डेमो देखेंगे कि इमेजिन अ सेल्स टीम दैट गेट्स पीरियोडिक जीएसटी फाइल्स on email, and everything is compiled without any manual intervention. Accurate performance, updates without manual effort। और वो सेल्स डेटा भी है जो भी इंजेस्ट करता है अपने आप, ऑटोमेटिकली उसको ट्रांसफॉर्म करता है और आपके सामने एक डैशबोर्ड या डेटा क्रंच करके रख देता है। अब आप में से कितने लोगों को ये लगता है कि इट इज वेरी इजी या इट इज वेरी डिफिकल्ट। आपका क्या कहना है। इट सीम्स टू बी डिफिकल्ट। और एनीबडी एल्स वांट्स टू कंट्रीब्यूट। यस, इट विल इन्वॉल्व लॉट ऑफ टूल्स डेफिनेटली। नीड टू अंडरस्टैंड हाउ इट वर्क्स, यस, उसी के बारे में जाएंगे। डिपेंड्स ऑन सॉफ्टवेयर, करेक्ट। इट्स डिफिकल्ट इफ यू डोंट नो हाउ टू डू इट, करेक्ट। तो वही आज हम सीखने के लिए आए हैं यहाँ पे, वही मैं शेयर करने वाला हूँ आपके साथ कि कैसे हम इजीली एक इकोसिस्टम बना सकते हैं। कोई और कह रहा है कि डिपेंड्स ऑन द सॉफ्टवेयर, यस। लेकिन हर बार ये जरूरी नहीं होता कि आपको एक ही सॉफ्टवेयर चाहिए इस चीज के लिए। आप छोटे छोटे टूल्स एक साथ यूज करके एक बड़ा सा सॉफ्टवेयर जैसी कुछ चीज आप कर सकते हो। यस, इंटीग्रेशन इज इंपॉर्टेंट, दैट्स व्हाई आई सेड कि डिपेंडेंसीज। तो डिपेंडेंसी समझना भी बहुत जरूरी होता है, फ्लो जरूरी होता है हर एक चीज का, करेक्ट। तो हम अब आगे बढ़ेंगे। तो इन ऑल बहुत लोगों को लगता है कि ये डिफिकल्ट है, बट आई टेल यू इट्स नॉट दैट डिफिकल्ट। तो सबसे पहले हमारी स्टेप थी कि आइडेंटिफाई द इशू। तो हमने इशू आइडेंटिफाई कर लिया कि मेरे पास ईमेल में फाइल्स आती है मेरे क्लाइंट से, जो मुझे ऑटोमेटिकली प्रोसेस करनी है अपने आप, जिसकी तरह से मुझे आज के लिए मैंने ये किया है कि हम ऑटोमेटिकली उसका एचएसएन समरी बनाएंगे, विच सीम्स टू बी द लास्ट स्टेज बट डिफिकल्ट ऑल्सो, करेक्ट। तो सबसे पहले हमने इशू आइडेंटिफाई कर लिया, फिर हम आइडेंटिफाई करेंगे कि टूल्स कौन कौन से होते हैं। तो इसमें एक्सेल काम में आ सकता है, पावर बीआई काम में आ सकता है, पावर ऑटोमेट काम में आ सकता है, और पावर क्वेरी काम आ सकती है। तो आई होप कि आपने इन चीजों के बारे में सुना होगा। अगर नहीं सुना है
तो मैं जल्दी से बता देता हूँ। एक्सेल तो सब जानते हैं आप लोग कि एक्सेल एक डेटा क्रंचिंग के लिए, डेटा एनालिसिस के लिए और या फिर सिंपल डेटा प्रोसेसेस के लिए यूज होने वाला एक माइक्रोसॉफ्ट का टूल है। पावर बीआई जो है, जैसे नाम में है पावर बीआई, बिजनेस इंटेलिजेंस, तो ये डेटा डैशबोर्डिंग, क्लीनिंग, नॉर्मलाइजेशन और क्लेंजिंग का एक टूल है जो एक्सेल के साथ ही में पावर डेस्कटॉप आता है। आपको अलग से इंस्टॉल करना पड़ता है, लेकिन पावर बीआई डेस्कटॉप जो होता है वो फ्री होता है। तो वो एक्सेल अगेन एक्सेल के साथ का ही टूल है। पावर ऑटोमेट डेस्कटॉप और पावर ऑटोमेट वेब दो अलग अलग टूल्स आते हैं। पावर ऑटोमेट डेस्कटॉप ये फ्री टू यूज है, जिनके पास माइक्रोसॉफ्ट का ऑफिस लाइसेंस है उनके लिए डेस्कटॉप फ्री होता है। बट आप वेब यूज करना चाहते हो तो उसके लिए कुछ पेड वर्जन आपको लेने पड़ते हैं। तो पावर ऑटोमेट बेसिकली क्या करता है? पावर ऑटोमेट, जैसे हमने सेशन के स्टार्ट में कहा कि हमें बहुत सारे काम होते हैं जो हमें लगता है कि यार ये ऑटोमेट होने चाहिए। तो जैसे ये हमारा छोटा ट्रेनी है जिसे हम सिखाते हैं कौन सा काम कैसे करना है, और फिर वो अपने एब्सेंस में वो काम रोज बिना थके बिना रुके दिए हुए टाइम पे करते रहता है। तो दैट इज पावर ऑटोमेट, काइंड ऑफ रोबो। दैट्स वाई आरपीए में भी उसका बहुत काम होता है, रोबोटिक प्रोसेस ऑटोमेशन जिसे बोलते हैं, तो आरपीए में यूज होता है। और पावर क्वेरी, पावर क्वेरी अगेन एक लेयर है एक्सेल, मैं ये कहूंगा एक्सेल और बीआई के बीच की एक लेयर है जो डेटा क्लेंजिंग, नॉर्मलाइजेशन के लिए काम में आती है। आपको डैशबोर्ड नहीं बनाना है, बस डेटा क्रंचिंग करना है, तो आपको पावर बीआई यूज करने की जरूरत नहीं होती, आप पावर क्वेरी भी यूज कर सकते हो। उसके बाद में आते हैं गूगल क्लाउड बेस्ड सॉल्यूशंस। तो इसमें आज हम देखेंगे कि गूगल शीट्स यूज करेंगे हम, एक्सेल जैसा ही काउंटर पार्ट है गूगल का। गूगल ऐप शीट मैं बाद में यूज करना सिखाऊंगा, क्योंकि उसमें लोकेश भाई का स्पेशल डिमांड था कि इसका भी थोड़ा सा डेमो दिया जाए, तो वो मैं डेफिनेटली बताता हूँ। अच्छा, किसी का सवाल है कि डैक्स क्या होता है? सो एक्सेल में एज सच डैक्स नहीं होता। डैक्स जो होता है, तो वो जो जैसे हम एक्सेल में फॉर्मूला कोई भी यूज करते हैं, तो वैसे ही पावर बीआई में डैक्स फॉर्मूला बोलते हैं, डेटा एक्सप्रेशन। तो ये कॉम्प्लेक्स डेटा क्रंचिंग के लिए जो फॉर्मूला यूज किया जाता है, नॉट इन एक्सेल बट इन पावर बीआई, तो उसे कहा जाता है डैक्स, अगर मैं आपको आसान शब्दों में कहना चाहूँ तो जैसे एक्सेल में फॉर्मूला होते हैं वैसे पावर बीआई में डैक्स फंक्शंस होते हैं, तो डेटा एक्सप्रेशन जिसको बोल सकते हैं हम। ओके, कमिंग बैक टू द सब्जेक्ट, गूगल ऐप शीट और उसके बाद में होता है गूगल लुकर स्टूडियो। तो गूगल लुकर स्टूडियो क्या है? गूगल लुकर स्टूडियो एक काउंटर पार्ट है पावर बीआई का, सिमिलर लेवल पे ही बनाया गया है। आई वोंट से दैट इट हैज द सेम कैपेसिटीज एज पावर बीआई, बट काम चल जाता है। अगर आपको बहुत बेसिक लेवल का डेटा डेटा डैशबोर्डिंग करना है, बहुत बेसिक लेवल का इंटरेक्टिव डैशबोर्ड्स बनाना है, तो डेफिनेटली गूगल लुकर स्टूडियो भी आपको काम में आएगा। फ्री वर्जन होता है। हर एक जीमेल अकाउंट, आप सभी के अपने जीमेल अकाउंट होते हैं, तो गूगल लुकर स्टूडियो फ्री होता है एक सर्टेन एक्सटेंट तक। बाद में कोई कॉम्प्लेक्स शेयरिंग वगैरह चीजें करनी होंगी तो उसमें पेड वर्जन भी हम ले सकते हैं। गूगल वर्कप्लेस का एक कह सकते हैं उसको एक प्रोडक्ट है। तो इसको समरी अगर मैं करना चाहूंगा, तो आइडेंटिफाइंग द टूल्स जो हमारी सेकंड स्टेप थी, तो यहाँ पे आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो इस स्क्रीन का। तो फीचर्स मैंने दिए हुए हैं, कौन कौन सा टूल क्या क्या कर सकता है। तो डेटा क्लीनअप कौन कर सकता है, डेटा विजुअलाइजेशन कहाँ पे होगा, ऑटोमेशन कैपेसिटी कौन कौन से टूल में है, रियल टाइम कोलैबोरेशन हो सकता है या नहीं हो सकता है, शेड्यूल्स जिसको आरपीए बोलते हैं, तो आप देखेंगे ऐप और पावर ऑटोमेट में ही मिलेगा आपको। गूगल शीट में थोड़ा थोड़ा मिलेगा, लेकिन उसके लिए ऐप स्क्रिप्ट भी आपको मालूम होना जरूरी होता है। उसके लिए थोड़ा कोडिंग नॉलेज, या आजकल आप यूज कर सकते हो चैट जीपीटी टू राइट गूगल ऐप स्क्रिप्ट्स, जो थोड़ा सा जावा या सी लैंग्वेज पे बेस्ड कोडिंग लैंग्वेज होगा उनका। उसके बाद में इंटीग्रेशन विद एपीआई, तो एपशीट भी एपीआई के साथ काम कर सकता है, पावर ऑटोमेट कर सकता है, लेकिन दूसरे टूल्स नहीं कर सकते। तो यहाँ तक किसी को कोई डाउट है? और शुड आई मूव अहेड? Anyone has any doubts? No, sir. चलिए। ओके, तो ऑटोमेट क्यों करते हैं हम? टाइम सेव करने के लिए ऑब्वियसली, इफिशिएंसी बूस्ट करने के लिए, और इनसाइट्स जो होते हैं वो फास्टर गेन करने के लिए। क्योंकि आज की तारीख में कोई भी डेटा का एनालिसिस जो है वो जितना टाइम पे और जितना जल्दी हो सके उतना अपना सक्सेस रेट बढ़ पाता है। सो अगेन आई टेक यू बैक टू द बेसिक्स, बिल्डिंग एन इकोसिस्टम, identify the data sources first, then define the workflow,
then choose the right tools out of the tools that I have explained. There can be many more tools that you can use. पैरेलल टूल्स बहुत सारे होते हैं, जैसे पावर बीआई है, उसके लिए पैरेलल है गूगल लुकर स्टूडियो, जिसको पहले डेटा स्टूडियो बोला जाता था, उसके पैरेलल टैबल्यू भी है। तो ऐसे बहुत सारे टूल्स होते हैं, आपको चूज करना है कि आपको बजट में कौन सा बैठता है आपके, और आपका नीड कितना कॉम्प्लेक्स नीड है या सिंपल नीड है, एंड देन आपको इम्प्लीमेंट करना है और इटरेट करते रहना है वही प्रोसेस एफिशिएंटली करने के लिए। तो जो मैंने आज का टूल यूज किया है, तो ये इकोसिस्टम मैंने बिल्ड किया उसके अराउंड। तो जैसे मैंने आपको कहा था कि जीमेल में क्लाइंट का मेल आएगा, फिर पावर ऑटोमेट ट्रिगर होगा, जो उस मेल की अटैचमेंट जो है वो गूगल ड्राइव में डालेगा अपने आप ले जाके। या आई विल शेयर द पीपीटी विथ यू गाइस। मैं लोकेश भाई के साथ शेयर कर दूंगा, ही विल शेयर इट विथ यू। तो गूगल ड्राइव में अपनी फाइल सेव होगी, उसके बाद पावर क्वेरी और पावर बीआई इंजन में वो फाइल जाएगी, और एंड ऑफ द डे हमें जो एचएसएन रिपोर्ट चाहिए ऑटोमेटिकली वो हमें मिलेगा। तो सो की टेकअवेज क्या है इस डिस्कशन के? तो वी शुड स्टार्ट स्मॉल, थिंक बिग। छोटे छोटे टास्क ऑटोमेट करना शुरू कीजिए, उसको ग्रेजुअली स्केल कीजिए, तो आपके बहुत सारे टास्क या एक बहुत बड़ा टास्क छोटे छोटे टास्क के साथ में आप ऑटोमेट कर सकते हो। एम्ब्रेस हाइब्रिड सॉल्यूशंस, जैसे माइक्रोसॉफ्ट और गूगल टूल्स है या बहुत सारे अलग अलग टूल्स है, उनको लेवरेज उनका यूज करो, उनकी स्ट्रेंथ अलग अलग होती है, सिनर्जाइज करो उनको, और आपका काम करने के लिए उन्हें यूज करो। नेसेसरी नहीं है हर बार कि आप एक बड़ा सा सॉफ्टवेयर लो या डेवलप करो। और ऑलवेज कंटिन्यू लर्निंग, स्टे अपडेटेड विद द न्यू फीचर्स, न्यू टूल्स दैट आर कमिंग इन टू द मार्केट, एंड एक्सप्लोर ऑल द टेक्निक्स दैट यू कैन। So now is demo time. So are you excited to have a look at this demo now? Okay, I'll first share the screen again. Is my screen visible now? यस। Yeah. चलो तो हम देखते हैं कि हमें क्या करना है। तो सबसे पहले मैं इटरेट करता हूँ वापस से जो हमने सीखा था। तो समझ लीजिए कि ये मेरा ईमेल है, जिसमें मुझे लोगों के ईमेल्स आते हैं कि जैसे जीएसटी का सेल्स डेटा आता है या जो भी डेटा आता है। तो यहाँ पे मैंने डेमो के लिए, जैसे देख लीजिए यहाँ पे एक डमी फाइल्स तैयार करके रखी हुई है। जैसे यहाँ पे डेटा पड़ा हुआ है, 2021 का डेटा पड़ा हुआ है मेरे पास, जहाँ पे इनवॉइस डेट है, कस्टमर का नाम है, जीएसटी नंबर है, प्रोडक्ट नेम है उसका, और टैक्सेबल वैल्यू है। समझ गए? लेकिन हमें एचएसएन टेबल में या एचएसएन समरी में क्या लगता है हमेशा? नॉट ओनली टैक्सेबल वैल्यू, बट हमें और चीजें क्या लगती है? टैक्सेबल वैल्यू लगती है, सीजीएसटी है या आईजीएसटी है वो लगता है, यानी स्टेट जीएसटी लगेगा या आईजीएसटी लगेगा वो लगेगा। रेट के हिसाब से हमें वहां पे समराइज करना पड़ता है, लेकिन यहाँ पे डेट तो है नहीं। करेक्ट? तो यहाँ पे डेट नहीं है तो कोई डरने की जरूरत नहीं है। हमारे पास मास्टर फाइल भी एक बना के रखी है मैंने, जो आप बना सकते हो अपने आप से, या फिर आप क्रंच भी कर सकते हो डेटा जैसा यूजर भेजता है। तो आपने यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे मेरे पास प्रोडक्ट मास्टर फाइल है, जहाँ पे उसका प्रोडक्ट का नेम, एचएसएन कोड, जीएसटी रेट और नोट्स यानी डिस्क्रिप्शन उसका पड़ा हुआ है यहाँ पे, और स्टेट कोड्स भी पड़े हुए हैं हमें अगर स्टेट के हिसाब से ये डेटा बाइफरकेट करना होगा तो जैसे आप देखोगे यहाँ पे 2021 की एक फाइल है, बाद में 2022, 23, तो हम इसके साथ हम देखेंगे कि कैसा ऑटोमेशन चलेगा अपना। तो ये हो गया फर्स्ट स्टेप। मुझे क्लाइंट भेज रहा है ईमेल, जो मुझे उठाना है और मुझे डालना है गूगल ड्राइव में। तो मैंने एक दूसरा मेरा बिल्डिंग ब्लॉक बना के रखा, मैंने डिसाइड किया कि मुझे वो जो डेटा आता है वो मुझे कहाँ रखना है। अब यहाँ पे आप बोल सकते हो कि भाई अगर मुझे 10 क्लाइंट भेजते होंगे तो क्या करूंगा? तो आप सेम ही ऑटोमेशन कॉपी करके, लेकिन उसमें कंडीशन लिख के, क्योंकि हर एक क्लाइंट का एक एक मेल डेसिग्नेटेड होता है, तो हर एक क्लाइंट के लिए आप अलग अलग फोल्डर भी उसमें बना सकते हो। लेकिन अभी मैं उसको इतनी कॉम्प्लेक्सिटी में नहीं जा रहा हूँ। जस्ट टू जस्ट टू स्टार्ट द फायर ऑफ थॉट प्रोसेस, मैं अभी यहाँ पे आपको बहुत एक सिंपल चीज करके बता रहा हूँ। तो जैसे मैंने मेरे माई ड्राइव में मैंने जीएसटी डेटा बोल के एक फोल्डर बना रखा है। तो मैं ये चाहता हूँ जब मुझे क्लाइंट की फाइल आए यहाँ पे, तो वो अपने आप, मैं ऑफिस में प्रेजेंट रहूं या ना रहूं, इस जीएसटी डेटा फोल्डर में मेरी वो फाइल जानी चाहिए।
ठीक है। आप में से किसी को भी अगर कोई डिफिकल्टी हो बीच में आप पूछ सकते हो, सो दैट हमें रिपीटेशन ना करना पड़े। बाद में हम क्वेश्चन आंसर ऑब्वियसली करेंगे। फिर मैं आता हूँ पावर ऑटोमेट में। आप में से कितने लोगों ने पावर ऑटोमेट देखा हुआ है या यूज किया हुआ है? एनीबडी दैट हैज यूज्ड पावर ऑटोमेट ऑलरेडी? विवेक जैन सर ने यूज किया है, बहुत लोग बोल रहे हैं कि हमने यूज नहीं किया है। अच्छा कंचना मैम, आपको आपका क्या डाउट है? व्हाट डू यू वांट मी टू रिपीट? ओके, फोल्डर। तो यहाँ पे सबसे पहले मुझे कोई भी क्लाइंट से, डेसिग्नेटेड क्लाइंट से मुझे एक ईमेल आएगा। उस ईमेल में जो अटैचमेंट होती है, जो मेरी फाइल होती है, जीएसटी की फाइल होगी ऑब्वियसली, सेल्स का डेटा भेजता है मुझे क्लाइंट, तो वो फाइल मुझे अपने आप सेव करनी है गूगल ड्राइव के इस फोल्डर में। दैट इज माई फर्स्ट गोल टू डू दैट। अच्छा, वो करते हुए मैंने और एक चीज करके रखी है, जैसे मैंने यहाँ पे लेबल तैयार कर रखा है। लेबल कैसे तैयार करते हैं आप सभी को मालूम होगा। तो लाइक लेबल के रूल्स होते हैं, आई वोंट गो इन टू द डिटेल, यू कैन गूगल इट। बट मैं अलग अलग लेबल तैयार कर सकता हूँ कि मुझे कौन से ईमेल को कौन सा लेबल लगाना है। ठीक है, तो मैंने एक लेबल भी यहाँ पे तैयार कर रखा है, जीएसटी डेटा नाम का फोल्डर भी तैयार कर रखा है। और मैं थर्ड स्टेप में आऊंगा, पावर ऑटोमेट में। तो पावर ऑटोमेट छोटी छोटी चीजों को आरपीए में बदलता है। व्हाट इज आरपीए? रोबोटिक प्रोसेस ऑटोमेशन। तो जैसे ये मैंने बोला कि मुझे ईमेल आने के बाद उसका अटैचमेंट जो है अपने आप एक गूगल ड्राइव के फोल्डर में सेव होना चाहिए, तो इसलिए मैं पावर ऑटोमेट यूज करूंगा। नाउ लेट्स गो। तो पावर ऑटोमेट में हम जो बॉट्स लिखते हैं, छोटे छोटे आरपीएस करते हैं उसमें, उसको बोला जाता है फ्लोस, ऑटोमेटिक फ्लोस। तो मैंने माय फ्लोस पे क्लिक किया। तो ये मैंने एक फ्लो बना के रखा है, मैं आपको दिखाता हूँ वो कैसे काम करेगा। सो फर्स्ट आई क्रिएट फ्लो। तो उसमें मुझे सबसे पहले वो पूछता है कि आपकी कौन सी स्टेप है। तो मैंने उसे बताया कि जब कोई न्यू ईमेल आता है मेरे ईमेल इनबॉक्स में, तो मुझे क्या करना है। उसके पहले थोड़ा बहुत कस्टमाइजेशन भी करना पड़ता है, आई विल शो यू। तो यहाँ पे मैंने सिंपली डाल दिया, बहुत सारे रेडी भी होते हैं। अब मेरे पास ये रेडी है तो मैं ये आपको सर्च करके बताऊंगा। सेव जीमेल अटैचमेंट्स टू योर गूगल ड्राइव। तो मैं ये जब करता हूँ तो मुझे सबसे पहले यहाँ पे मुझे मेरे ईमेल अकाउंट जो है उसका मुझे एक्सेस देना पड़ता है एक बार लॉगिन करके, जब मैं सबसे पहले ये फ्लो बनाऊंगा तब। पावर ऑटोमेट एक बार ऑब्वियसली मुझे रिक्वेस्ट करेगा कि आपके इनबॉक्स का, आपके गूगल ड्राइव का मुझे एक्सेस दो। तो मैंने उसे यहाँ पे एक्सेस दे दिया, आप यहाँ देख सकते हो। जीमेल का भी एक्सेस मैंने दे रखा है और गूगल ड्राइव का भी मैंने उसे एक्सेस दे रखा है। ठीक है। देन आई विल शो यू। अब मैंने किया है, मैं उसे बोल रहा हूँ कि जब भी मुझे कोई ईमेल आए और उसका लेबल हो जीएसटी डेटा। ये कैसे आया? तो क्योंकि मैंने मेरा जीमेल अटैच कर, मेरा पावर ऑटोमेट अटैच कर रखा है मेरे जीमेल से, तो मैं वहां पे जो भी लेबल्स बनाता हूँ वो मुझे अपने आप यहाँ दिखने लगते हैं। तो मैंने जीएसटी डेटा सिलेक्ट कर लिया है। यहाँ पे आप डाल सकते हो, अगर आपको स्पेसिफिक सेंडर से आने वाला ईमेल को अगर सॉर्ट करना है तो यहाँ पे आप फ्रॉम भी डाल सकते हो कि मुझे एक स्पेसिफिक ईमेल से जब ईमेल आए तभी उसका अटैचमेंट सेव किया जाए, अदरवाइज मैं मैन्युअली सेव करूंगा। तो यहाँ पे अलग अलग ऑप्शन है, आप देख सकते हो, वहां पे आप जैसे चूज करना है आप डाल सकते हो। अभी के लिए मैंने सिर्फ एक ऑप्शन रखा है कि जिसका लेबल हो जीएसटी डेटा, बस। तो यहाँ पे ये एक सेटिंग है। और उसके बाद में अप्लाई टू ईच अटैचमेंट, मैंने एक स्टेप ऐड किया, इंसर्ट अ न्यू स्टेप, ऐड एन एक्शन जैसे बोलते हैं। तो मैंने एक्शन करके मुझे क्या एक्शन करना है वो वहां पे सेव कर दिया है। तो मैं उसे कह रहा हूँ कि अप्लाई टू ईच अटैचमेंट। अब मेरे पास जो ये एक ईमेल आया है उसमें अगर अटैचमेंट होगा तो मुझे क्या करना है। तो सिलेक्ट एन आउटपुट फ्रॉम द प्रीवियस स्टेप। मेरी प्रीवियस स्टेप क्या थी? ईमेल, ये मेरी प्रीवियस स्टेप थी, उसका जो अटैचमेंट है वो सिलेक्ट कीजिए, वो मैंने कहा। और फिर उसको कहा क्रिएट अ फाइल। क्रिएट फाइल कहाँ पे? यहाँ पे आपको लोगो दिख रहा है, तो गूगल ड्राइव में एक फाइल क्रिएट करो। कहाँ पे? ये देखिए फोल्डर पाथ। ये फोल्डर पाथ कहाँ से आया? मैंने आपको बताया था, जीएसटी डेटा मैंने ऑलरेडी
तैयार कर रखा था वो। करेक्ट है। मेरा स्क्रीन तो दिख रहा है ना ठीक से सभी को? हाँ। ओके। तो मुझे जीएसटी फोल्डर पाथ में डेटा सेव करना है। फिर एक और दूसरी बहुत अमेजिंग चीज होती है, क्योंकि क्लाइंट हमेशा ऐसा नहीं है कि बराबर नाम से फाइल भेजेगा, कुछ भी न्यू फाइल, टेम्पररी फाइल, कुछ भी नाम देके अटैच कर देता है। तो यहाँ पे ये भी फैसिलिटी उन्होंने दिया है कि आपको वो जो ऑटोमेटिक फाइल सेव होगा वो कैसे नाम से सेव करनी है। तो मैंने यहाँ पे क्या किया है, मैंने सिलेक्ट किया है सेंडर नेम। ये कैसे सिलेक्ट कर सकते हैं, यहाँ पे आपको दिख रहा है मेरे राइट हैंड साइड में। ये देखिए यहाँ पे जितने सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं, यहाँ पे उन्होंने रेडीली अवेलेबल होते हैं। तो इस पे बस हमें क्लिक करना है। तो जैसे जैसे मैं क्लिक करते जाता हूँ वो सिलेक्ट होते जाता है। तो मेरी जो फाइल सेव होगी वो कैसे होगी, सेंडर्स नेम रहेगा उसमें, उस फाइल के नाम में अटैचमेंट का नाम तो रहेगा ही रहेगा, कौन से ईमेल से आया है वो भी वहां पे आ जाएगा, कौन से डेट को आया है वो भी आ जाएगा। और बाद में मैंने लिख दिया है डॉट एक्सएल एस एक्स, यानी वो जो फाइल है वो एक्सेल फाइल बोल के सेव की जाए वहां पे। और फाइल कंटेंट कौन सा होगा, जो फाइल मुझे अटैचमेंट में आ गई है वही फाइल मुझे सेव करना है। करेक्ट। तो ये इतना आसान सा है ऑटोमेशन या आरपीए बनाना। किसी को कोई यहाँ तक डाउट है? एनी डाउट्स और शुड बी मूव अहेड? सर इस केस में मान लो जीएसटी वाला, मान लो एक ही हमें उसमें बाइफरकेशन करना है, मान लो सिंगल मेल में से, मान हम्म। लो जो 3B वाला और वो मैसेज है वो ओटीपी निकाल के, मान लो किसी में नोटिस आ रही है या हाँ किसी में अमेंडमेंट एप्लीकेशन है, हाँ। उसका ARN है, तो एक ही सेंडर आएगा, तो उस केस में उसको बाइफरकेशन कर सकते हैं कि भाई ये जीएसटी उसके रजिस्ट्रेशन उसमें का है। उसमें भी सर हम बाइफरकेशन कर सकते हैं। उसके लिए हम और एक आरपीए लिख सकते हैं, और उसमें हम बोल सकते हैं, देखिए कोई भी जब नोटिस आता है हमें, तो उस नोटिस का जो नाम होता है, तो उसमें आपने तो देखा होगा कि उसमें भी ट्रेंड फॉलो होता है हमेशा एक बार। ट्रेंड फॉलो करेक्ट है। करते हैं, जीएसटी वाले DRC 1 इश्यू करते हैं, 1 इश्यू हाँ। करते हैं। तो उसमें डीआरसी लिखा हुआ होगा, या जो भी नोटिस होगी, शो कॉज नोटिस होगी, तो उसमें एससीएन लिखा हुआ होगा, और उसमें जीएसटी नंबर भी होगा क्लाइंट का। तो उस हम्म, हिसाब से हम आरपीए एक लिख सकते हैं, जिसमें वो ये जो फोल्डर है हमारा गूगल ड्राइव का, वो भी हमें बाइफरकेट करके देगा। तो दैट कैन बी सेकंड स्टेप। तो इसमें ये भी पॉसिबल होता है कि वो ट्रेंड एनालाइज कर सके, फाइल नाम कौन सा है, फाइल नेम, और उसके हिसाब से अलग अलग वो फाइल्स का फोल्डर बना के उसमें डाल सके। इज दैट क्लियर? यस सर। या। Okay. So now this is my RPA which is ready. अब कितने लोगों को लगता है कि ये डिफिकल्ट है? We are already on the third stage. Do you think that it is difficult? Of course, it needs a little practice, but it's not that difficult. जितना हमें लगता है उतना डिफिकल्ट है नहीं। तो हमें हैंड्स ऑन प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। इनके ट्रायल वर्जन्स होते हैं, वो यूज करते रहो, अपने आप एक्सप्लोर करोगे कि ये चीजें कैसे हो सकती हैं, कैसे कर सकते हैं उस चीज। ठीक है। ओके, तो हम अब आगे बढ़ेंगे। अब हम इसे करेंगे टेस्ट। तो सबसे पहले मैं आता हूँ जीएसटी डेटा। आप सब लोग देख लीजिए, मेरे जीएसटी डेटा में कोई फाइल है अभी? देयर इज नॉट अ सिंगल फाइल। मेरे जीएसटी डेटा लेबल जो पड़ा हुआ है मेरे जीमेल में, यहाँ पे भी कोई भी ईमेल नहीं है। राइट। यस सर। या। इसके बाद में अब मैं करता हूँ, अब मैं मेरे ही एक दूसरा ईमेल, जो क्योंकि डेमो देना है मुझे, तो मैं एक दूसरा ईमेल क्रिएट करके रखा हूँ। तो वहां से मैं ईमेल भेजूंगा मेरे, जिस जिस पे अपन ने ऑटोमेट आरपीएल लिख रखा है वहां पे मैं ईमेल भेजूंगा। तो सबसे पहले हम आते हैं, मेरा फोल्डर खोल लेता हूँ जहाँ पे मैंने डेमो फाइल रखी हुई है आपके लिए। तो दिस इज माय डेमो फाइल। तो हम पहले 2021 का फाइल भेज देंगे, फिर देखेंगे कि ऑटोमेशन कैसे काम करता है। तो अब हम यहाँ पे हैं। तो सबसे पहले मैं आपको डेमो देने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर रेडी कर लेता हूँ। तो यहाँ पे डाला मैंने मेरा ईमेल आईडी, मैंने कुछ यहाँ पे मेरा डाल देता हूँ, कुछ सब्जेक्ट डाल दूंगा मैं।
और यहाँ पे जैसे कोई भी क्लाइंट हमें भेजता है, वैसे मैं यहाँ पे फाइल इस यहाँ अटैच कर दिया। राइट। सो यहाँ मैंने फाइल अटैच कर दिया। नाउ व्हाट वी विल डू, अब ये ऐसा होता नहीं है, लेकिन आपको स्लो दिखाना है इसलिए मैं स्टेप बाय स्टेप दिखा रहा हूँ। अब आपके सामने स्टेप बाय स्टेप दिखाना है, इसलिए मैं यहाँ पे क्या करूंगा, यहाँ पे टेस्ट दिख रहा है तो हम टेस्ट करेंगे कि ये कैसे काम करेगा। तो मैं टेस्ट पे क्लिक करता हूँ, तो वो मुझे पूछ रहा है कि आपको फ्लो कैसे टेस्ट करना है, तो मुझे मैन्युअली टेस्ट करना है उसे। अब मैं जब इस पे टेस्ट दबाऊंगा तो इसका काम शुरू हो चुका है। अब मैं ये भेज दूंगा ईमेल, मेरे यहाँ से ईमेल चला गया, ईमेल ईमेल हैज बीन सेंड। अब हम यहाँ आके देखेंगे यहाँ क्या ईमेल आया है मुझे जीएसटी में, थोड़ा 2-4 सेकंड लगेंगे। ये मेरा ईमेल आ गया, ऑनलाइन डेमो। अब देखिए यहाँ पे आ गया, यहाँ पे दिख रहा है टिक, टिक मार्क। इसका मतलब है कि हमारा ऑटोमेशन काम कर गया। उसे कितना टाइम लगा, 1 सेकंड लगा, वो भी देता है कि जैसे ही वहां पे कोई लेबल वाला ईमेल आया, 1 सेकंड में इसने एसेस कर लिया कि भाई वहां पे ईमेल आ गया है, और उसके अगले 5 सेकंड में इसने वो फाइल उठा के अपने गूगल ड्राइव फोल्डर में डाल दिया। अब मैं आपको वापस से एक स्टेप पीछे ले जाऊंगा, क्योंकि मुझे दिखाना है आपको कि फाइल का नाम कैसे था। तो हमने फाइल का नाम कैसे लिखा था यहाँ पे, व्हाट वाज द हायरार्की, सेंडर्स नेम, अटैचमेंट का नाम, कौन सा ईमेल से आया है और कौन सी डेट को आया है, डॉट एक्सएलएसएक्स। राइट। तो देखिए अब मैं यहाँ चला गया, तो ऑपरेशंस, तो मैंने जो ये भेज रखा था, तो मेरा ये ईमेल का नाम ऑपरेशंस है, इसलिए वहां पे आया ऑपरेशंस। फाइल का नाम था 2021, आपने देखा था फाइल का नाम ये 2021 था। बाद में operations@facet.in मेरा ईमेल आईडी जो था, और उसके सामने 31 मार्च को आया हुआ है, और यहाँ पे ये यूटीएस दिखाता है, तो उसको इंडियन स्टैंडर्ड टाइम में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। ये ऑटोमेशन में मैंने उसे नहीं किया था, तो ये इंटरनेशनल टाइम में दिखाएगा। तो यहाँ पे ये फाइल सेव हो गई। आप लोग समझ रहे हो। सर इसमें ये पता कैसे चला कि ये जीएसटी का ही डेटा है, कि सारे में जो भी मैसेज आएंगे वो सिर्फ जीएसटी लेबल डेटा में ही जाएंगे? हाँ, तो करेक्ट, गुड क्वेश्चन। तो यहाँ पे हमें ये करना है, जैसे कोई भी चीज हम करते हैं, कोई भी सॉफ्टवेयर आप यूज करते हो, तो हर एक सॉफ्टवेयर का कोई ना कोई रूल होता है, ये तो आप मानते हो। तो जब हम हमारे ऑफिस का ऑटोमेशन कर रहे हैं कोई भी चीज का, या फिर आप, तो हमें एक चीज करनी पड़ेगी कि भाई एक रूल सेट करना पड़ेगा अपने क्लाइंट के लिए, कि भाई आप जीएसटी का जो डेटा हमें भेजते हो, समझ लीजिए gst@office.com आपका ईमेल आईडी आपने तय कर रखा है कि वहां पे जीएसटी का मुझे ईमेल आ रहा है, तो उस हिसाब से मैं इसको बाइफरकेट करूंगा। ऐसा हर वक्त नहीं है कि हमेशा हमें यही करना पड़ेगा, बट अगर हम ये सिस्टम लगाते हैं, क्योंकि हम आज एक इकोसिस्टम की बात कर रहे हैं, तो जैसे हम इकोसिस्टम लगाते जाएंगे तो हमारे काम आसान होते जाएंगे। इज दैट क्लियर। हाँ सर। यस। बट दैट इज नॉट नेसेसरी, जैसे मैंने आपको कहा, फाइल नेम के हिसाब से भी हम आरपीए लिख सकते हैं, बट देन दैट बिकम्स अननेसेसरीली कॉम्प्लिकेटेड। तो इतना करने से अच्छा है आप आपके क्लाइंट को थोड़ा सा एजुकेट करो कि भाई जीएसटी के डेटा के लिए जो भी ईमेल भेजना है वो इस ईमेल पे हमें भेजा कीजिए, सो दैट आपके पास हमेशा उसका ईमेल आईडी तो रहता ही है, तो हर एक का एक एक फोल्डर अलग से अपने आप बनता रहे। तो ये हो गया हमारा, ऑटोमेशन रन हो गया। यहाँ पे आ गई ये फाइल, ये एक फाइल आ गई यहाँ पे। ठीक है। अब हमें और एक चीज देखनी है। मैंने इस डेमो के लिए मैंने ये किया था कि जैसे हमारे ऑफिस में अपने खुद के ऑफलाइन मशीन्स होते रुक गया क्या यार, ये डर लगता है। Recording in progress. नॉट विजिबल। क्या हो गया।
Okay, is my screen visible to everybody? Yes, yes. Now but not loaded completely. Only the below items are like GST data, sent mail, GST data, test. Yeah, because I have minimized all my other screens. Acha, okay. Right. So what I was telling, I have also installed this Google Drive desktop sync on my machine. What it does is, जो मेरा ये ड्राइव होता है, ये वाला जो मेरा ड्राइव है, उसका एक डेस्कटॉप पे मेरे एक लिंक बनाता है, डेटा कॉपी नहीं करता, लिंक बनाता है उसकी। तो मैं जैसे जैसे मेरा माय कंप्यूटर होता है, आप देखते हो हमेशा मेरा दिस पीसी होता है, तो यहाँ पे आपको दिख रहा है गूगल ड्राइव, समझ गए? तो मैं जैसे गूगल ड्राइव पे क्लिक करता हूँ, ये मेरा यहाँ पे जीएसटी डेटा, तो दिस इज जस्ट वर्चुअल, ये डेटा एक्चुअली मेरे इस पे नहीं है, सिर्फ मैं एक्सेस यहाँ से कर रहा हूँ, समझ गए आप? ओके। हाँ, तो दिस इज द नेक्स्ट स्टेप। तो यहाँ तक आपने सबने फॉलो किया था, यूजर से ईमेल आया, ऑटोमेशन रन हुआ, अपने आप वो फाइल यहाँ चली गई। अब काम शुरू होता है अपने डेस्कटॉप ऑटोमेशन का। तो डेस्कटॉप ऑटोमेशन में क्या हुआ, मैंने ये गूगल ड्राइव का जो एक एप्लीकेशन है सिंक्रोनाइजेशन का, वो मैंने इंस्टॉल कर रखा है, जो एक लिंक बनाता है अपने गूगल ड्राइव के साथ में। फिर उसके बाद में मैंने ये चीज की, मेरे पास पावर बीआई पड़ा हुआ था, डेस्कटॉप वर्जन है, अभी के लिए मैं आपको डेस्कटॉप पे बता रहा हूँ। may take some time to open up. चलो, ये खुल गया, ये अपना खुल गया पावर बीआई डेस्कटॉप। तो देखिए, ये जो गूगल ड्राइव पे अपना डेटा सेव है ना, उसके ऊपर ये सब इसने क्वेरी रन किया, और यहाँ पे उसने HSN समरी बना दी। HSN समरी कैसे बनाई, मैं अभी बहुत ज्यादा यहाँ पे डिटेल में नहीं जाऊंगा, क्योंकि ये पावर बीआई या पावर क्वेरी का लेक्चर नहीं है, सम अदर टाइम वी कैन रिविजिट दैट। तो यहाँ पे मैंने एक छोटी सी क्वेरी लिख दी। क्वेरी कहाँ पे लिख दिया है, आप यहाँ पे देखोगे, माई ड्राइव जीएसटी डेटा। तो मेरी जीएसटी डेटा में जितनी सारी फाइल्स आएंगी उस क्लाइंट की, वो ये यहाँ पे हमेशा क्रंच करता रहेगा। और आपको मैंने दिखाया था, मेरे पास प्रोडक्ट मास्टर था, जहाँ पे HSN कोड पड़ा हुआ था, रेट पड़ा हुआ था, तो वो मैंने यहाँ पे ला लिया है। आप एक बार वापस केदार जी अनम्यूट कर लीजिए ना। ओके, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने क्वेरी लिख दी छोटी सी। तो मेरे पास ओरिजिनल डेटा जो था वो बहुत छोटा डेटा था, जैसे मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ। मेरे पास, आपको याद होगा कि मेरे पास सिर्फ डेटा कौन सा था, ये वाला। इनवॉइस डेट है, कस्टमर का नाम है, जीएसटी नंबर है, प्रोडक्ट नेम है और टैक्सेबल वैल्यू है, बस इतना ही डेटा था। लेकिन यहाँ पे उसने नंबर क्रंचिंग या डेटा एनालिसिस या थोड़ा सा ऑटोमेशन करके इसने क्या किया, इनवॉइस डेट, कस्टमर, जीएसटी नंबर, प्रोडक्ट नेम, टैक्सेबल वैल्यू यहाँ तक था। बाद में मैंने उसे कहा कि पहला 2 डिजिट लेके उसका स्टेट भी आइडेंटिफाई कर लो, वो उसने कर लिया। स्टेट के हिसाब से, क्योंकि मैं महाराष्ट्र में बैठा हुआ हूँ, तो मैंने कहा कि महाराष्ट्र छोड़ के बाकी सब आईजीएसटी है, जो महाराष्ट्र है वो सीजीएसटी रहेगा। HSN कोड ला लिया उसने, जीएसटी रेट ला लिया, जहां जहां पे आईजीएसटी है वहां पे सिर्फ आईजीएसटी कैलकुलेट किया, जहां जहां पे सीजीएसटी एसजीएसटी रहेगा वहां पे सीजीएसटी एसजीएसटी कैलकुलेट कर लिया, और ये डेटा उसने दे दिया पावर बीआई को। फिर पावर बीआई ने आगे क्या किया, पावर बीआई ने बना दिया उसका डैशबोर्ड। तो ये कस्टमर वाइज डेटा आ गया मेरे पास, एक बन गया। ईयर 1 क्वार्टरली भी मुझे अगर शेयर करना है तो क्वार्टरली में देख सकता हूँ। आपने देखा होगा वहां पे क्वार्टर नहीं थे अपने फाइल में, लेकिन ये ऑटोमेटेड डेटा क्रंचिंग की वजह से ये क्वार्टर्स भी बन गए। उसके बाद में मुझे कौन से स्टेट में कौन सा सेल हुआ था उसका है देखना है, ऑडिट करना है मुझे, तो वो भी मैं कर सकता हूँ। कौन सा प्रोडक्ट सबसे ज्यादा बेचा गया था वो भी मैं देख सकता हूँ यहाँ पे इमीडिएटली। और ये मेरा HSN समरी फॉर द सेक ऑफ GSTR1 रेडी है, राइट? तो दिस इज हाउ द ऑटोमेशन वर्क्स। अब हम फिर से एक बार ये
प्रोसेस करके देखेंगे टू सी दैट कितना टाइम लगता है ये कोई भी चीज करने में, होने में। तो मैं वापस से एक बार, चलो ये ईमेल भेज दूंगा, खुद खुद ही को ईमेल भेजूंगा, जीएसटी डेटा। अब 2021 की जगह मैंने ले लिया 2022। प्लीज पे अटेंशन व्हाट एम आई डूइंग। तो मैंने 2022 की फाइल भेज दी यहाँ पे, सेंड कर दिया उसे। अच्छा, तो ये तुरंत रन नहीं होगा मुझे, क्योंकि अभी, क्योंकि ये हर 15 मिनट में रन होता है। तो मुझे आपको ये दिखाने के लिए मुझे वापस से इसे क्या करना पड़ेगा, एक बार टेस्ट मोड में डालना पड़ेगा। तो मैं टेस्ट मोड में डाल दूंगा इसे, मैन्युअली टेस्ट कर लेंगे। अब मुझे ईमेल भेजना चाहिए। तो मैं जो पहला ईमेल, ये दूसरा आ गया था यहाँ पे, ये मैं डिलीट कर देता हूँ, नहीं तो एक ही ईमेल 2 बार देख लेगा। अब यहाँ जाता हूँ, कंपोज, ये 2022 वाली फाइल लेके यहाँ रख दिया है मैंने, और सेंड कर देंगे। नाउ लेट्स सी इफ द ऑटोमेशन ग्रैब्स होल्ड ऑफ दैट। ये देखिए, तुरंत उसने पकड़ लिया, तुरंत कॉपी भी कर दी। ये 2022 वाली फाइल आ गई यहाँ पे भी आ गई। अब मैं, मुझे बस ये करना है, मैं जब ये फाइल खोलता हूँ, यहाँ पे आप देख रहे हो 2021 है। मैं अब सिर्फ यहाँ पे एक बार रिफ्रेश कर दूंगा उसे, 2022 भी आ गई, देख रहे हो, 2022। ये यहाँ पे मेरा 11 लाख, 11,85,000 है मेरा यहाँ पे 2021 का। मैं 2022 पे आता हूँ, ये हो गया 13,76,000। दैट्स हाउ इजी बिल्डिंग द बेसिक आरपीएस इज। ओके, एनी क्वेश्चंस? ये आई हैव वन क्वेश्चन। पावर Yeah. बीआई से जो आपने कनेक्ट किया, हम्म। वो गूगल ड्राइव जो आपका डेस्कटॉप था कि क्या था, मतलब वो? नहीं नहीं नहीं, मैंने क्या किया है मैं आपको बताता हूँ। ये गूगल ड्राइव बोल के एक इनका ऐप आता है, गूगल का ही ऐप होता है, एक छोटा सा हम्म। प्लगइन है, छोटा सा। तो अच्छा। वो हमेशा क्या करेगा, आप ये यहाँ पे देख लीजिए, मैं आपको बताता हूँ। ये मेरा दिस पीसी, ये मेरा लोकल पीसी है, हम्म समझ रहे हो। हम्म हम्म यहाँ पे देखिए, उसने एक वर्चुअल ड्राइव बना दिया गूगल ड्राइव नाम से। हम्म। दिस इज एग्जैक्टली द मिरर इमेज ऑफ माई गूगल ड्राइव। अच्छा। हालांकि ये डेटा ऑफलाइन मेरे हार्ड डिस्क पे सेव नहीं है, ये मेरा स्पेस नहीं ले रहा है बिल्कुल। दिस इज अ वर्चुअल डेटा दैट आई एम सीइंग हियर। लेकिन जो अपना पावर बीआई है, उसे वो समझ नहीं आता वर्चुअल है या रियल है, उसे बस लिंक चाहिए। तो मैंने ये वर्चुअल बनाया हुआ था, मैंने जो आपको ये यहाँ दिखाया, वापस एक बार दिखा देता हूँ। जो मैंने पावर क्वेरी में क्वेरी लिख के रखी थी, तो एडिट क्वेरी, यहाँ देखिए, मैं यहाँ सोर्स में जाऊंगा, तो आप सोर्स में देखोगे, ये देखिए माई ड्राइव जीएसटी डेटा। उसमें जो रहता है गेट डेटा फ्रॉम फोल्डर है क्या वो? गेट डेटा फ्रॉम फोल्डर कर दिया मैंने, फोल्डर, हाँ, समझ गया। क्योंकि यहाँ पे फोल्डर डॉट फाइल्स लिखा हुआ है, इसका मतलब है हम्म। मैंने फोल्डर से डेटा उठाया हुआ है। तो हर बार जब कोई नई फाइल आएगी, तो वो अपने आप यहाँ पे इनकॉर्पोरेट कर लेगा। और एक मिनट, अब जिसको जिसको डाउट है मैं अनम्यूट कर देता हूँ, विवेक जी। जरूर। एक सर मिनट। ये जो आपने जो अच्छा, सबसे पहले query- मैं एक लेता हूँ। सविता जी ने मुझे क्वेश्चन पूछा है कि डू वी नीड टू डू टेस्ट रन एवरी टाइम। नो मैम, ये हर बार नहीं करना पड़ेगा मुझे। अभी आपको करके बताना पड़ा, उसका रीजन बताता हूँ। क्योंकि ये जो डेमो में दे रहा हूँ आपको, ये फ्री वर्जन में डेमो दे रहा हूँ, तो वो हर 15 या 20 मिनट बाद आपका मेल चेक करता है जाके कि कोई नया इंस्टेंस आया है क्या। लेकिन अभी हम 15 मिनट तो नहीं रुक सकते डेमो में, इसलिए मैं उसको मैन्युअली चला रहा था, उसे टेस्ट रन करके। लेकिन जब नॉर्मल हम काम कर रहे होते हैं, वो तो हर 10-15 मिनट में जाके आपका ईमेल चेक करेगा। अगर इफ इट कम्स अक्रॉस एनी न्यू ईमेल्स, तो इट विल डू द आरपीए, अदरवाइज इट विल सिट स्टिल। तो नो, टेस्ट रन हमेशा नहीं करना पड़ता है, ये दिस इज जस्ट फॉर द डेमो से। यस सर, विवेक सर आप कुछ पूछ रहे थे। अ, नमस्कार सर, मेरी आवाज़ आ रही है? यस यस।
मैं गुवाहाटी से सी विवेक जैन। नमस्ते सर। मैं काफी सालों से पावर क्वेरी, गूगल लुकर स्टूडियो, एप सीट्स एंड गूगल शीट्स वगैरह में काम कर रहा हूँ। हम्म, एक आपके आज ये डेमो देख के मुझे एक दिमाग में एक आइडिया आ रहा है, पता नहीं ये सही हो पाएगा कि नहीं। हाँ जो गूगल आपने जो ड्राइव का डेस्कटॉप ऐप इंस्टॉल कर रखा है, हाँ, उससे तो सारे डेटा सिंक होते हैं, उसमें एक्सेल करेक्ट फाइल है, भी हो गए, आपके गूगल शीट्स की फाइल भी आ जाती है। सभी आ जाएंगे तो उसमें। क्या पावर बीआई से हम गूगल शीट की फाइल्स को यूज करके डैशबोर्ड्स बना सकते हैं? वेरी वेरी गुड क्वेश्चन। तो हम अगर पावर बीआई डेस्कटॉप यूज कर रहे हैं तो अनफॉर्चुनेटली उसका गूगल शीट्स कनेक्टर अवेलेबल अभी तक नहीं है। बट इफ यू आर यूजिंग प्रो और प्रीमियम वर्जन विच इज अ वेब बेस्ड एप्लीकेशन, पावर बीआई एप्लीकेशन, तो उसमें गेटवेज नाम का एक डेटा कनेक्टर आता है, तो उसमें उन्होंने ऑलरेडी इंटीग्रेट कर रखा है, बिकॉज दैट्स अ पेड वर्जन। तो वहां पे गूगल शीट्स हो, एक्सेल शीट हो, कोई भी डेटा हो जो क्लाउड पे, नॉट ओनली गूगल, आप वन ड्राइव का डेटा यूज कीजिए, गूगल ड्राइव का यूज कीजिए, शेयर पॉइंट का यूज कीजिए, कोई सा भी डेटा यूज कीजिए, तो वहां पे गेटवे कनेक्टर्स बोलते हैं या डेटा गेटवेज बोलते हैं, उसका सेटिंग होता है उसमें। तो डेफिनेटली आप अगर वेब वर्जन यूज कर रहे हो पावर बीआई का, तो वहां पे आप कोई सा भी ड्राइव फोल्डर हो, वन ड्राइव हो या गूगल ड्राइव हो, तो गूगल ड्राइव का आपका स्पेसिफिक क्वेश्चन था कि क्या मैं गूगल शीट्स यूज कर सकता हूँ, तो हम्म। यस डेफिनेटली आप गूगल शीट यूज कर सकते हो। लेकिन अब इसका मैं दूसरा आंसर देना चाहूंगा कि व्हाट इफ यू डोंट हैव वेब वर्जन और प्रो पेड वर्जन, प्रीमियम वर्जन ऑफ दैट। तो ये चीज मैंने भी फेस की थी कुछ मैं जब काम कर रहा था, तो क्योंकि हर बार ऐसा नहीं होता कि क्लाइंट ये चाहे कि वो भी उसका लाइसेंस खरीदे, कॉस्ट बढ़ जाता है सॉल्यूशन का। तो मैंने ये किया था, मैंने ऐप स्क्रिप्ट एक लिखा था। तो वो ऐप स्क्रिप्ट क्या करता है, आपका जो डेसिग्नेटेड फोल्डर होता है उसमें जो भी गूगल शीट्स होंगी आपकी, वो आपको गूगल शीट से लेके, गूगल शीट फॉर्मेट से लेके एक्सेल एसएक्स फॉर्मेट में आप ही के गूगल ड्राइव में वो दिए हुए इंटरवल पे सेव कर देगा अपने आप। क्योंकि ऐप स्क्रिप्ट जो होता है, ऐप स्क्रिप्ट में भी ट्रिगर आप लगा सकते हो, जो मैक्रो में ट्रिगर नहीं होता, लेकिन गूगल शीट्स में, सॉरी गूगल हाँ। स्क्रिप्ट में वो ट्रिगर दे सकता है। तो वो ऐप स्क्रिप्ट क्या करता है, गूगल शीट आपका उठाता है, उसका पूरा डेटा जो होता है वो एक्सेल में पार्सिंग करता है, डेटा पार्सिंग जिसे जिसे बोलते हैं, और वो सेव कर देता है एक्सेल एसएक्स बोल के। तो तब आप फिर वो स्पेसिफिक फोल्डर आप आपके डेस्कटॉप पे सिंक कर लीजिए और उस पर फिर पावर बीआई डेस्कटॉप चला लीजिए। तो ये भी एक वर्क अराउंड हो सकता है। सो ये आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा, आज के जो टॉपिक है उससे बहुत ये रिलेट करता है कि हाउ टू बिल्ड अ इकोसिस्टम। तो आपके पास हमेशा एक प्रॉब्लम आएगा, लेकिन कहीं ना कहीं उसका दूसरा सॉल्यूशन छुपा हुआ होगा। तो आपको एक हम्म। इकोसिस्टम बिल्ड करनी पड़ेगी उसके अराउंड, तो अपने आप वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। एक और सवाल था। यस सर। जैसे मैं लुकर स्टूडियो तो यूज कर रहा हूँ, पावर बीआई को इतना एक्सप्लोर नहीं किया। तो आप एकदम शॉर्ट में कुछ मेजर डिफरेंस, क्या बेनिफिट है पावर बीआई ओवर लुकर स्टूडियो, कुछ बता पाएंगे? ओके ओके, उसके डेफिनेटली मैं वो बताता हूँ, बट फॉर द फॉर द सेक ऑफ आवर प्रेजेंटेशन, जस्ट अ मिनट, आई वुड फर्स्ट लाइक टू, मेरा स्क्रीन दिख रहा है? हाँ। या, हाँ, दिख रहा है। तो आई वुड हैव दिस डिस्क्लेमर फर्स्ट ऑन माय बोर्ड एंड देन आई विल आंसर। सो आपका क्वेश्चन था कि मेजर डिफरेंस क्या है, तो देखिए, जैसा गूगल लूकर स्टूडियो होता है, तो सबसे मेजर फर्स्ट चीज एक देखने वाली है कि इट्स नॉट, इट्स फ्री फॉर यूज वर्जन। तो जब कोई चीज फ्री होती है तो ऑब्वियसली बहुत सारी फंक्शनैलिटीज उसमें हम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। और जब बात आती है पावर बीआई की या कोई भी डेटा क्रंचिंग टूल की, तो जैसा बोलते हैं स्टिचिंग ऑफ डेटा, तो हमारे पास बहुत सारी अलग अलग फाइल्स होती है जो स्टिच करके हमें एक फाइल बनानी पड़ती है बड़ी सी, राइट? जैसे हम वी लुकअप यूज करते हैं तो पावर बीआई में हम मर्ज क्वेरी यूज करते हैं उसी तरह से। तो पावर क्वेरी जो है, पावर क्वेरी या पावर बीआई जो है, उसमें आप कितनी सारी भी सी फाइल ले लीजिए, उसको आप मर्ज कर सकते हो एक फाइल में। लेकिन गूगल लुकर स्टूडियो या गूगल डेटा स्टूडियो जिसे कहते हैं, उसमें एक लिमिटेशन जो मैंने पर्सनली एक्सपीरियंस किया है, उसमें दो ही फाइल हम एक दूसरे के साथ स्टिच कर सकते हैं। दैट इज द फर्स्ट एंड वेरी पेनफुल, क्या कहते हैं, डिफरेंस ये जो वहां पे आएगा। तो बहुत कॉम्प्लेक्स स्लाइस एंड डाइस अगर आपको फाइल के साथ करना होगा तो डेफिनेटली वो गूगल लुकर स्टूडियो में पॉसिबल
नहीं हो पाता है। ये और प्रॉब्लम मैं भी फेस किया था, तो मैंने इसका वर्क हाँ। अराउंड ऐसे निकाला था हम्म। कि जैसे गूगल शीट्स में मेरे पास 6-7 शीट्स है जिनको मुझे वर्क हम्म। करना होता है, और लुकर हम्म। स्टूडियो में एक रिपोर्ट जनरेट करनी पड़ती है। हम्म। तो मैंने एक ऐप स्क्रिप्ट कोडिंग करके पहले उस हम्म। सारी शीट्स को एक सिंगल गूगल शीट में मर्ज करने का एक वो ऑटोमेटिक टूल बन गया, करेक्ट सर। और उस वेरी गुड। मर्ज शीट को फिर लोकल स्टूडियो से लिंक कर दिया था। वेरी गुड। वेरी गुड। बट आप जो बता रहे हैं कि पावर बीआई में हम लोग वो स्टेप को स्किप करते हुए डायरेक्ट कर सकते हैं। यस, वो आप कर सकते हो, या मैं एक और छोटी सी चीज आपके साथ शेयर कर सकता हूँ कि आप ट्राई कीजिए गूगल शीट्स में। आपने कभी क्वेरी फंक्शन अगर ट्राई किया होगा, तो हाँ जैसा हाँ, एसक्यूएल क्वेरी। क्वेरी होता है, तो हाँ हाँ। इंस्टेड ऑफ यूजिंग ऐप स्क्रिप्ट आप अगर क्वेरी फंक्शन यूज करेंगे, तो आपको जो प्रोसेस है थोड़ी आसान हो जाती है, और फॉर्मूला लिखना थोड़ा ऐप स्क्रिप्ट के कंपैरिजन में थोड़ा आसान हो जाता है। और चूंकि फिर हम बहुत सारी फाइल्स यूज कर रहे हैं, तो वहां पे और एक ट्रेड ऑफ होता है कि जैसे जैसे गूगल शीट की फाइल हेवी होते जाती है, तो वैसा थोड़ा सा गूगल लुकर स्टूडियो का परफॉर्मेंस भी डाउन होने लगता है। बट अगेन, दैट्स ऑल अबाउट हाउ इजी एंड हाउ चीपर सोल्यूशन वी वांट। तो हम्म। अगर हमें खर्चा नहीं करना है, तो डेफिनेटली व्हाट यू आर सेइंग इज करेक्ट। उसके अलावा अरे फॉर्मूलाज भी आप यूज कर सकते हो, या इंपोर्ट रेंज, ये दो फंक्शंस भी आप यूज कर सकते हो, जिसकी वजह से बहुत सारी फाइल एक ही जगह पे लाना बहुत आसान हो जाता है, एक ही शीट में लाना। क्वेरी मैं यूज कर रहा हूँ, बट क्वेरी में हम्म। एक प्रॉब्लम फेस करता हूँ कि जो अलग अलग फाइल्स है वो यूनिफॉर्म फॉर्मेटिंग में नहीं है। हम्म। किसी में कुछ कॉलम्स ज्यादा है, किसी में कुछ कॉलम्स कम है। यस यस तो यस। उस चक्कर में फिर मुझे एप्सक्रिप्ट यूज करना पड़ा। करेक्ट है, करेक्ट है। बट पावर बीआई विल मेक योर लाइफ मोर हाँ। इजियर। डेस्कटॉप वर्जन तो फ्री है वैसे भी, तो आप डेस्कटॉप वर्जन यूज कर सकते हो एक फाइल बनाने के लिए। वही हम्म, फाइल वापस गूगल ड्राइव पे डाल दो, और उससे गूगल डेटा स्टूडियो में यूज कर लो, तो दैट कैन बी अनदर वर्क। ठीक है, मैं ट्राई करूंगा पावर बीआई। यस। थैंक यू एनी सो मच। मोर? या, थैंक यू, वेलकम। एनी मोर क्वेश्चंस? ये व्हाट अबाउट पीडीएफ फाइल्स लिखा है, मतलब ऑब्वियसली सेम ही होगा। पीडीएफ फाइल जो पावर क्वेरी है, पावर क्वेरी पीडीएफ फाइल्स ठीक से डिकोड नहीं कर पाता, बट पावर बीआई का जो इंजन है, पावर बीआई का इंजन बहुत पावरफुल है, तो वो पीडीएफ फाइल्स भी डिकोड कर पाता है, इफ दैट इज योर क्वेश्चन। इफ योर क्वेश्चन इज ओनली अबाउट ट्रांसफरिंग द अटैचमेंट्स टू वन गूगल ड्राइव, देन कोई सी भी फाइल हो, आपको एक्सटेंशन से कुछ लेना देना नहीं है, वो सेव कर देगा आपकी फाइल। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज, कैन वी ट्रिगर पावर ऑटोमेट बेस्ड ऑन इवेंट? यस सर, आप इवेंट पे भी कर सकते हो। इनफैक्ट हमने जो अभी मैंने आपको डेमो बताया है, दैट इज ऑल्सो बेस्ड ऑन वन इवेंट। आई विल अगेन शो यू। दिस इज माई इवेंट व्हेन एन ईमेल अराइव्स, सो दैट इज माई इवेंट। तो जब भी कोई नया ईमेल आएगा, तो वो जाके देखेगा कि क्या उसे जीएसटी डेटा ये लेबल अटैच्ड है क्या। अगर जीएसटी डेटा ये लेबल अटैच्ड होगा, तो आगे का काम करेगा, अगर लेबल नहीं होगा तो काम नहीं करेगा। एनी मोर क्वेरीज? एक क्वेरी और पूछ सकता हूँ क्या मैं? यस हाँ यस। सर, क्यों नहीं। ये पावर ऑटोमेट डेस्कटॉप वर्जन, हम्म। उसमें मैं यूज करता था, जैसे एक मेरा ऑटोमेट बना हुआ था कि एवरी मॉर्निंग एट 9 AM हम्म। वो रन होता था फ्लो। हाँ हाँ। और जीएसटी के साइट में जाके चेक करता था कोई नया एडवाइजरी अगर आया है, हम्म। तो एडवाइजरी का सब्जेक्ट जो है वो एक्सेल में एक टेबल में ऐड कर देता था, हम्म। और उसका हाइपरलिंक टेबल में क्रिएट हो जाता था। वहां से क्लिक करके आप एडवाइजरी का पीडीएफ डाउनलोड हम्म। कर सकते थे। हम्म। बट रिसेंटली कुछ अपडेट आया पावर ऑटोमेट डेस्कटॉप में, हम्म। उसके बाद से वो शेड्यूल रन का ऑप्शन बंद हो गया, ऑटोमेटिक रन नहीं करता है। इसके बारे सर, में आपको कुछ डेस्कटॉप आइडिया है क्या? डेस्कटॉप में अनअटेंडेड एक्सेस जो है वो धीरे धीरे कम करते जा रहे हैं, बिकॉज हाँ। दैट इज बीइंग ऑफर्ड इन पेड वर्जन्स। सो इसको अनअटेंडेड एक्सेस बोलते हैं। तो अपने नहीं, आप मेरा पेड वर्जन ही है, बट वो भी उसमें भी नहीं होता है वो। नहीं, तो आई विल हैव टू चेक इट। बट अगर आपने फिर अगर आपका पेड वर्जन है, तो इट इज बेटर आइडिया टू शिफ्ट दैट फ्लो ऑन वेब बेस्ड पावर ऑटोमेट, सो दैट आपका मशीन चालू हो या ना हो, अपने आप फिर उसे करना ही चाहिए। अनलेस देयर इज सम इशू विथ जीएसटी साइट और द फ्लो, तो वी विल हैव टू चेक इट। आई एम नॉट वेरी मच श्योर अबाउट व्हाट द एरर ठीक। इज, बट अदरवाइज इट शुड वर्क, ठीक। अगर आपका पेड वर्जन है। यस। अ, सो एनी मोर डाउट्स?